what is the meaning of the chapter? चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो उस चैप्टर के टाइटल के मीनिंग बताती हूँ। विराज जी जरा सा बताएं। विराज, विराज 8C। हाँ बेटा, मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग of the title of this chapter, resources utilization and development। और तीनों वर्ड का आप रिलेशन जोड़ के मुझे बताओ। मैंने जब शुरू, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले मैं यही चैप्टर पढ़ाई थी, तो मैं इसमें इसकी मीनिंग बताई थी। जिसे याद है वो आगे आए, वो बता सकते हैं, और नहीं तो आप लोग में से कोई बताइए, नहीं तो फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। बोलो बेटा, किसी को पता है? हाँ बोलो। हाँ आयुष। Ma'am, resources is anything that we human beings can use for our necessity, and they are important for our existence on the planet. Now, resources can be utilized in various forms, various ways. So, utilization is the way in which we can use the resources, and the development of the resources means how resources have been used from time to time. ओके सुनी, बाद में बताऊंगी, ठीक है? बाद में अपना कमेंट दूंगी। पहले और बच्चे बताओ। चलो आयुष बेटा बोलो। आयुष बोलना चाह रहा था। राउंड 40 सेक्शन। मैम मैंने क्वेश्चन नहीं सुना मैम, कनेक्शन नहीं था। मैम क्वेश्चन नहीं सुना मैंने, कनेक्शन नहीं था। एक सेकेंड, पहले आयुष को जवाब देने दो, मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करूंगी तो सृजा बोलना। चलो आयुष बोलो। Ma'am, all the things on the earth which are necessary for our existence. सामने लाओ, माइक सामने लाओ और थोड़ी जोर से बोलो। चलो रेडी। All the things on the earth which are necessary for existence of human beings on this planet are known as resources. So in this chapter, the chapter's title is resources utilization and development. So in this chapter we are going to learn about resources utilization, means how we can use resources, and the utilization of resources are based on availability of resources, skill of human beings, availability of capital, water, advancement of technology, and availability of transport and communication facilities. And we are also going to learn about development, means how resources are being developed. ओके सृजा के लिए एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। मैंने पूछा था कि चैप्टर नंबर 1 आज रिवीजन हो रहा है, तो मैंने पूछा था इस चैप्टर का टाइटल है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस 3 वर्ड्स? Yes ma'am, I can answer. Okay Ma'am, कैमरा ऑन करो से। बोलो। क्या हुआ? बोलो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अनिकेत बोलो। क्या कहाँ चली गई सृजा? क्वेश्चन देख करके बताओ, बनाने के कोशिश करो बनाने का। किसी की माइक ऑन है? माइक करो। मैम अनिकेत कुमार। माइक ऑफ करो। सृजा बाहर हो गई, लगता कनेक्शन कट गया है। फिर मैं ज्वाइन की हूँ उसको।
सॉरी मैम, कनेक्शन से लूज हो गया था। सृजा बोलो। हाँ, यस मैम, अब बोलते हैं। Ma'am, resources is a stock or supply of things which we use in our daily life and which can be used efficiently for fulfilling our daily requirements. These are called resources. And the utilization of resources, like how we use a resource, in which way we use a resource, and how it can be used effectively. It is called utilization. And where there is a proper utilization of resources, there will be better development and there will be more amount of development, because the resources available in a country can help the country to grow, and a proper utilization will aid in the development of that particular country and will also progress the thinking of people too. ठीक है, की सुनी। अब मैं बताती हूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलती हूँ। मैं ऐसे समझाऊंगी कि you all know that what are resources which help in our daily life, that are called resources. They can be natural or man-made. They can be biotic or abiotic. They can be actual or potential. But now the word utilization. There are several factors that resources in your country or any country. Transportation, communication, technology is available, scientific knowledge is available, capital is available. If all the things are available, or whatever factors just now I mentioned, suppose I have mentioned 6 factors. Suppose 4 factors are available in your country, only 2 is lacking, then also you can utilize your resources. You can utilize your resources. Suppose capital, transportation, communication, and skilled and unskilled labor are available. Then also you can utilize your resources. If science and technology is available, then it is very good. Then you can absolutely utilize your resources. And when you utilize your resources, then certainly development will take place in your country. This is the relation between all the 3 words: resources, utilization and development. रिसोर्स क्या है पता है आपको? कैसे होगा? अगर ये सब फैक्टर अवेलेबल है तो ये यूटिलाइज वो कंट्री अपने रिसोर्स को कर लेगा। जैसे इंडिया, हमारे यहाँ क्या नहीं है? एक गाना आप सुने होंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मीन्स फर्टाइल सॉइल, abundance of water. गंगा is a perennial river. सिर्फ गंगा ही नहीं, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, और भी कई नदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना? और क्या है? और ह्यूमन बीइंग भी अच्छे हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर भी है, यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी भी है। तो दक्कन प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो वो दिन दूर नहीं जबकि इंडिया सर्टेनली डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में खड़े होंगे। ठीक है ना? तो ये है मीनिंग इस चैप्टर की। समझ में आया? एक सेकेंड, अविका ने मैसेज किया है तो पढ़ लूं। ऑल द थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ व्हिच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट इज नोन एज रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल वाटर, इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट द यूटिलाइजेशन, हाउ वी यूज आवर रिसोर्स। फॉर एग्जांपल वी यूज वाटर टू ड्रिंक एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, जो मैंने कहा वो समझ में आया आपको? अगर दोबारा सुनना चाहते तो वीडियो ऑन करके आप लोग सुनना। हर दिन का वीडियो तो मैं पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिडिल ऑफ द चैप्टर से है, जिसमें से पहला है D1। ठीक है? यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स vary from time to time and place to place. Give 3 examples to support the statement. तो utility and value of a resource vary from time to time and place to place.
क्या कह रहा है कि रिसोर्स टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इस ये वैरी करता है, समय के अनुसार भी वैरी करता है और प्लेस के अनुसार भी। तो 3 आपको सुटेबल एग्जाम्पल देने हैं। मैंने आपको लिखवाया था, बहुत बच्चे लेट ज्वाइन किए हो, ये वीडियो बहुत पहले प्रोवाइड की थी, तो आज सुन लो, आज के वीडियो में बार बार चला के सुन लेना, नो नीड टू नोट इट डाउन, प्लीज सुन लो। मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया था कि यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो फर्स्ट पॉइंट था कि वाटर, अर्लियर ह्यूमन बीइंग, आपको ये पता होगा कि ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर, लाइक चाइनीज सिविलाइजेशन on the bank of Wangu River, Nile Egyptian civilization on the bank of Nile River, Indus Valley civilization on the bank of Indus River, and Mesopotamian civilization कहाँ पे ये डेवलप किया, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच। वैसे भी बीच की जमीन को लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब, DOAB, और दोआब बहुत ही फर्टाइल होते हैं। तो मेसोपोटामिया बहुत ही फर्टाइल था क्योंकि ये 2 नदी यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में बहती है। ठीक है, अब ये आप समझ गए कि सारी सिविलाइजेशन वाटर के आसपास ही पनपा, नदी के आसपास ही फ्लोरिश किया। तो वाटर का यूटिलाइज ये लोग कैसे करते थे, फॉर नेविगेशन, फॉर इरिगेशन, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, खाना वाना बनाना है, पीना है, जो भी करना है। लेकिन आज के डेट में वाटर का एक और क्या यूज है, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उस जमाने में नहीं थी, तो उस जमाने में भी वाटर था, आज भी वाटर है, लेकिन टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस इसमें चेंज आ गए। उन लोग से 3 काम करते थे, हम लोगों ने 4था शुरू कर दिया, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आपकी बात समझ में आई? अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिखाया था सोलर एनर्जी कैन बी इफेक्टिवली। आप जानते हो सोलर एनर्जी इज अ फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ इन अबंडेंस। ढेर सारा सोलर एनर्जी हम लोग अगर ट्रैप करते हैं तो हम लोग सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर गीजर और न जाने क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से वी पीपल कैन सेव आवर एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अब सोलर एनर्जी कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन कंट्रीज, बट द सेम कैन नॉट बी यूज्ड इन पोलर रीजन because sun ray cannot reach in the polar region directly. पोलर एरिया में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, बर्फ जमी रहती है, आपको पता होगा। तो वहां सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, सन इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो स्लैंटिंग है, जबकि इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन पे सनलाइट बहुत इफेक्टिव है, तो वहां पे हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वैरी किया एनर्जी का यूज। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि earlier times metal was restricted in making household utensil. मेटल यूज हुआ था, आपने क्लास 6 में पढ़ा था, कॉपर है, आयरन है, बहुत कुछ है। तो उसके उन लोग क्या बनाते थे, यूटेंसिल बनाते थे, ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी बनाते थे। बट आज के डेट में मेटल का और क्या यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में भी मेटल की यूज हम लोग करते हैं। तो ये आंसर के ये 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, समझ आई? तो ये एक बीच में से आंसर है, और तीसरा एक बीच में से आंसर है मेरे लवली चैप्टर से, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स
are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. Explain the statement giving suitable examples. ये E1 का आंसर है, ठीक है। तो E1 के आंसर भी मैंने लिखवाए थे। तो आप लोग क्या लिखवाई थी? ह्यूमन नीड एंड वांट आर नीदर यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं रहता है और ना स्टैटिक रहता है। नीड एंड वांट ना, ये कंटिन्यूअस चेंज आता है और ग्रो करता है और ग्रो करता है और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या है? क्लोथ, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, भोजन, वस्त्र और आवास। तो पहले दिनों में हम बस इसी की फुलफिल करने में लगे रहते थे। खाना मिल गया, रहने को जगह मिल गई और तन को ढकने को कपड़ा, मतलब पेड़ पौधे की छाल, पत्ते वगैरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे, अपने शरीर को। बट धीरे धीरे क्या हुआ? शिक्षा, एजुकेशन, लोग गुरु के घर में जाने लगे, गुरुकुल की परंपरा विकसित हुई, वहां शिक्षा लेने लगे। और अब फिर आज के डेट में एजुकेशन एक वास्ट, माने इसके इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगे और अब बस एजुकेशन तक ही सीमित नहीं रहा, हम लोग अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने लगे। मीन्स हम लोग अब क्या करने लगे? हम लोग को अब मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये जो नेसेसिटी है ये ग्रो कर रहा है डे बाय डे, ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इसके ये आंसर है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से अक्सर पूछा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ये आज तो मैं इसको रिवाइज करवा